नमो लोये सौहरिहन्ताणं नमो लोये सौहृदानं नमो लोये सौवागिर्यानं नमो लोये सौज्यायानं नमो लोये सौत्रिकावती सावनं ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गौतमोऽग्नि मङ्गलं कुन्कुण्डारि विजेन्द्रमोसुमङ्गलं नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथास्ति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव निरुद्ध निराकार। कलश अमृत भगवान अमृतचंद्राचार्य रचित कलश अमृत नो स्वाध्याय આપણે કરી રહ્યા છીએ। એમાં મોક્ષ અધિકાર નો 10મો કળશ એટલે કળશ 189 નો સ્વાધ્યાય ચાલે છે। આ કળશ સમયસારમાંથી તેમજ કળશ અમૃતમાંથી આપણે વાંચનમાં લીધો છે અને તે પછીથી તેની ઉપર પૂજ્ય ગુરુદેવ કાંજી સ્વામીએ જે વિસ્તાર કર્યો છે એનો કેટલોક ભાગ કર્યો છે। આજે શેષ ભાગ લઈશું। તે પછી કળશ 190 નો સ્વાધ્યાય આપણે શરૂ કરીશું। તો પહેલા કળશ 190 આપણે વાંચનમાં લઈએ છીએ। કળશ 188, 189, 190, 191 અને 192 આ 5 કળશ અહીંયા મોક્ષ અધિકારમાં છેલ્લે કહેવામાં આવ્યા છે। એટલે એક પછી એક કળશ જે છે તે આગળના કળશના અનુસંધાનમાં જ કહેવામાં આવ્યા છે। તો એવી રીતે આ 190મો કળશ છે એ 189ના કળશના અનુસંધાનમાં જ કહેવામાં આવ્યો છે। એટલે અહીંયા એમ કહે છે કે હવે 189મા કળશ પછીથી કે હવે આ અર્થને દ્રઢ કરતું કાવ્ય કહે છે। આ અર્થને દ્રઢ કરતું કાવ્ય એટલે કે 189માં જે વાત છે તેને। હવે આપણે જાણીએ છીએ કે 188 અને 189 એ બે કળશની વાત સાથે લેવામાં આવી અને એમાં એ વાત હતી કે જે શુભભાવ છે પ્રતિક્રમણ વગેરેના જે કઈ શુભભાવ છે એને ત્રીજી ભૂમિકામાં એટલે કે જે લોકો એટલા આગળ વધ્યા છે પોતાના સ્વરૂપમાં જ વિશેષ એકાગ્રતા કરી રહ્યા છે એમની અપેક્ષાથી જો વિચાર કરીએ તો એવી ત્રીજી ભૂમિકામાં જે છે એમને માટે એ બધા શુભભાવ प्रतिक्रमण प्रतिसरण वगैरह ए शुभभाव ए 20 कुंभ छे। ए 20 कुंभ छे एम कहेवामां आव्युं अने पछी 189 मां एनी पाછી स्पष्टता पण करवामां आवी छे। ए बधी वात आपणे जाणीए छीए अने 189 नो शेष भाग छे ए पण आपणे जे वांचनमां लईशुं। हवे एना पछीथी अहींया 190मो कळश कहे छे अने ए अर्थने दृढ़ करतुं काव्य तरीके कह्यो छे। એટલે એમ કહે છે કે કોઈ પણ પ્રકારે પ્રમાદ જીવને હોય નહીં। तो अहींया श्लोकार्थमां कहे छे के कसायना भार वडे कसायना भले शुभभाव होय तो पण ए कसाय छे ने तो कसायना भार वडे भारे होवाथी आळसुपणुं ते प्रमाद छे। तेथी ए प्रमादयुक्त आळस भाव शुद्ध भाव केम होई सके एटले के ए न होई सके। माटे निजरसथी भरेला स्वभावमां निश्चल थतो मुनि परम शुद्धताने पामे छे अथवा शीघ्र अल्पकाळमां कर्मबंधथी छूटे छे। निज भावमां निजरसथी भरेला स्वभावमां निश्चल थतो एमांथी चलित न थाय एवी रीते त्यां विशेष एकाग्रता करी अने स्थिर थतो ए मुनि परम शुद्धताने पामे छे अथवा तो शीघ्र अल्पकाळमां कर्मबंधथी छूटे छे। एना भावार्थमां कहे छे के प्रमाद तो कसायना गौरवथी थाय छे। एटले के प्रमादनुं कारण शुं छे? ए कसाय सहित ए प्रवर्तन जे छे ए ज प्रमाद छे। एटले जेने हजी एनी रुचि रही छे अहींया कसाय एटले शुभभावनी वात छे। मुनिना शुभभाव तो छे नहीं तो एनी हजी रुचि जेने रही छे एने कारणे ए मुनिने प्रमाद छे। केम के प्रमाद कोने कह्युं कि जे आत्मा सिवाय बीजी वातमां रस ले छे तो आत्माने लक्ष्ये जेने एकाग्रता एनुं लक्ष्य रहतुं नथी निरंतर स्वरूपनुं लक्ष्य नथी रहतुं एने प्रमादी कहेवामां आवे छे। ए प्रमाद छे। आत्मा सिवाय बीजी वस्तुनो विचार विकल्प ए बधो प्रमाद ज छे।
પછી ભલે એ શુભ ભાવ હોય, શાસ્ત્રની રચનાનો ભાવ જે છે, તો પણ અપેક્ષાથી એવા મુનિ ને માટે એ એમ કહેવાયું કે પ્રમાદ છે, કેમ કે એમને તો પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિર થવું છે. એટલે અહીંયા કહે છે કે પ્રમાદ તો કસાયના ગૌરવથી થાય છે, માટે પ્રમાદીને શુદ્ધ ભાવ હોય નહીં. પ્રમાદીને તો શુદ્ધ ભાવ હોય નહીં. શુદ્ધ ભાવે થાય ત્યારે કોઈ વિકલ્પ હોતો જ નથી, કોઈ પ્રમાદ હોતો નથી. જે મુનિ ઉદ્યમથી સ્વભાવમાં પ્રવર્તે છે તે શુદ્ધ થઈને મોક્ષને પામે છે. તો આ વાત 190 ની અંદર કરવામાં આવી. અને 189 ની વાત અત્યારે ચાલે છે, એનું અનુસંધાન આપણે પ્રાપ્ત કરીએ તે પહેલા 190મો કળશ અહીંયા કળશ અમૃતમાંથી આપણે વાંચનમાં લઈએ. પંડિત રાજમલજીએ ખંડાનભાઈ સહિત જે અર્થ અહીંયા કર્યો છે, તો એમાં કહે છે કે અનુભવમાં શિથિલ છે એવો જીવ વળી કેવો છે? નાના પ્રકારના વિકલ્પોથી સંયુક્ત છે એવો જીવ. અનુભવમાં શિથિલ છે એટલે અનુભવ, આત્માના અનુભવમાં જ રહેવો જોઈતો હતો, પણ એમાં કોઈક પ્રકારે એ પાછા બહાર રહ્યા કરે છે, તો એને અનુભવમાં શિથિલ એમ કહ્યા છે. અને એ કેમ બહાર રહે છે એનું સાથે કારણ પણ લીધું છે. એટલે કહે છે કે વળી કેવો છે, તો કે છે કે નાના પ્રકારના એટલે અનેક પ્રકારના વિકલ્પોથી સંયુક્ત છે. તો એવો જીવ શુદ્ધ ઉપયોગી ક્યાંથી હોય? એટલે કે એવો જીવ શુદ્ધ ઉપયોગી હોય નહીં, એનો ઉપયોગ શુદ્ધ હોય નહીં, અર્થાત નથી હોતો શુદ્ધ ઉપયોગ. કારણ કે અનુભવમાં શિથિલતા, નાના પ્રકારના વિકલ્પ છે, એટલે એ શુદ્ધ ઉપયોગમાં હોય નહીં. શા કારણથી થાય છે એ નાના પ્રકારના વિકલ્પ વગેરે? તો કે છે કે રાગ આદિ અશુદ્ધ પરિણતિના ઉદયના તીવ્રપણાથી થાય છે. ભાવાર્થ આમ છે કે જે જીવ શિથિલ છે, વિકલ્પ કરે છે, તે જીવ શુદ્ધ નથી. કારણ કે શિથિલપણું, વિકલ્પપણું અશુદ્ધપણાનું મૂળ છે, કે અશુદ્ધપણાનું કારણ છે. શિથિલપણું, વિકલ્પપણું, એ વિકલ્પ અને એ પ્રકારે શિથિલતા હોય નહીં. આ કારણથી મુનિ અર્થાત સમ્યક દ્રષ્ટિ જીવ શુદ્ધ ઉપયોગ પરિણતિ રૂપ પરિણમે છે. અને એવો થતો થકો એટલે શુદ્ધ ઉપયોગે પરિણમતો થકો એ સમ્યક દ્રષ્ટિ મુનિ તે જ કાળે કર્મબંધથી મુક્ત થાય છે. એ મુનિને વિશે કહે છે કે કેવા છે મુનિ? તો કહે છે કે સ્વભાવમાં અર્થાત શુદ્ધ સ્વરૂપમાં એકાગ્રપણે મગ્ન છે. અને એવા એકાગ્રપણે મગ્ન થતા ચેતના ગુણથી પરિપૂર્ણ જે સ્વભાવ છે એમાં જ એ સ્થિરતા પામે છે. ચેતના ગુણથી પરિપૂર્ણ સ્વભાવની અંદર એ તો મગ્ન છે, એમાં જે સ્થિરતા કરી રહ્યા છે, એવા એ મુનિ એ અલ્પકાળની અંદર સર્વ કર્મ બંધથી મુક્ત થાય છે. તો 190 ની અંદર આ વાત લીધી. 189 ની અંદર વાત જે ચાલી રહી છે એને આપણે જરાક ફરીથી વાંચનમાં લઈએ છીએ, જેથી સ્પષ્ટ થાય કે 189 ની અંદર અહીંયા સમયસારની અંદર જે ભાવાર્થ કયો છે એને આપણે જરાક ફરીથી જોઈએ છીએ. તો કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે અપ્રતિક્રમણ આદિ હોય છે તેમની તો વાત જ નથી. એટલે કે જેને અજ્ઞાન અવસ્થામાં પ્રતિક્રમણનો કોઈ વિકલ્પ જ નથી, એવા અપ્રતિક્રમણ આદિ જે ભાવ, જેને શુભ ભાવ ધર્મના માટેના જે શુભ ભાવ જે કહેવામાં આવે એવા નિમિત્તો એને હોતા નથી. એટલે અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે અપ્રતિક્રમણ આદિ હોય છે એમની તો વાત જ નથી. એટલે તો એ તો હોવા જ ન જોઈએ. અહીંયા તો શુભ પ્રવૃત્તિ રૂપ દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ આદિનો પક્ષ છોડાવવા માટે, જેને દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ છે, નિયમિત પ્રતિક્રમણ, સામાયિક પૂજા, ભક્તિ, સ્તવન, આ બધું જે કરે છે અને વ્રત વગેરે અંગીકાર કરે છે, એટલે એ બહારમાં જે રોકાઈ રહ્યા છે, તો એમાં રોકાઈ રહ્યા છે, એમને ત્યાંથી અંતર તરફ વાળવા છે. એટલા માટે અહીંયા એ વાત કરવામાં આવી કે આ બધા પ્રતિક્રમણ વગેરે જે છે એ 20 કુંભ છે એમ કહેવામાં આવ્યું. વાસ્તવમાં એ કઈ 20 કુંભ નથી. એવા ભાવ, શુભ ભાવ તો જ્ઞાની ધર્મીને પણ જ્યારે એ સવિકલ્પ દશામાં છે ત્યારે હોય છે, પણ એ એમાં રોકાઈ નથી રહેતા. અને એમાં રોકાઈ ન રહેવા માટે આચાર્ય ભગવાન એવા સમ્યક દ્રષ્ટિને કહે છે કે ભાઈ એમાં તું રોકાયો, એ તો
તું 20 કુંભમાં રોકાયો, તારે તો સ્વભાવ ભાવે થવું જોઈતું, તું સ્વભાવ ભાવે રહેવું જોઈતું, તું સ્વભાવ ભાવે સ્થિરતા કરવાની છે. એટલે એ અહીંયા કહે છે કે અજ્ઞાન અવસ્થામાં જે અપ્રતિક્રમણ આદિ હોય છે તેમની તો વાત જ નથી. અહીં તો શુભ પ્રવૃત્તિ રૂપ દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ આદિનો જે પક્ષ, એનો સ્વભાવનો પક્ષ છોડાવવા માટે તેમને દ્રવ્ય પ્રતિક્રમણ આદિને તો નિશ્ચય નયની પ્રધાનતાથી 20 કુંભ કયા છે. એ ખરેખર 20 કુંભ નથી, નિશ્ચય નયની પ્રધાનતાથી 20 કુંભ કયા છે. નિશ્ચય નયની પ્રધાનતાથી જોઈએ તો શુદ્ધ ભાવ એકમાત્ર ઉપાદેય છે. કારણ કે તેઓ આ જે શુભ ભાવ છે તેઓ બધા કર્મ બંધના જ કારણ છે. એટલે એને નિશ્ચય નયની પ્રધાનતાથી 20 કુંભ કયા છે. અને પ્રતિક્રમણ અપ્રતિક્રમણ આદિથી રહિત એવી ત્રીજી ભૂમિ કે જે શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપ છે, તેમજ પ્રતિક્રમણ આદિથી રહિત હોવાથી અપ્રતિક્રમણ રૂપ છે, તેને અમૃત કુંભ કહી છે. પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ કે જેમાં કોઈ બીજો ભાવ છે જ નહીં, તો એને અમૃત કુંભ કયો છે. અને એના ભાવે પરિણમવું એમ અહીંયા પ્રેરણા કરી છે. એટલે કે છે કે તેને અમૃત કુંભ કહી છે. અર્થાત ત્યાંના અપ્રતિક્રમણ આદિને, ત્રીજી ભૂમિના અપ્રતિક્રમણ આદિને અમૃત કુંભ કયા છે. ત્રીજી ભૂમિમાં ચડવા માટે આ ઉપદેશ આચાર્ય દેવે કર્યો છે. પ્રતિક્રમણ આદિને 20 કુંભ કયા સાંભળી જેઓ ઉલટા પ્રમાદી થાય છે તેમના વિશે આચાર્ય દેવ કહે છે કે આ માણસો નીચા નીચા કેમ પડે છે, ત્રીજી ભૂમિમાં ઊંચા ઊંચા કેમ ચડતા નથી. જયારે એમ કહ્યું કે પ્રતિક્રમણ આદિ છોડી અને શુદ્ધ ભાવે થાવ, તો એને બદલે પ્રતિક્રમણ આદિને શુભ ભાવને છોડી અને જો નીચે ચાલ્યા જાય તો શું થાય? એ નીચે જવા માટે એ છોડવાની વાત નથી કરી. એટલે અહીંયા કહે છે કે આ માણસો નીચા નીચા કેમ પડે છે, ત્રીજી ભૂમિમાં ઊંચા ઊંચા કેમ ચડતા નથી. જ્યાં પ્રતિક્રમણને 20 કુંભ કહ્યું ત્યાં તેના નિષેધ રૂપ અપ્રતિક્રમણ જ અમૃત કુંભ હોઈ શકે. પણ એ કોના? એ ત્રીજી ભૂમિમાં જવા માટેની વાત છે, સમ્યક દ્રષ્ટિના એની વાત છે, અજ્ઞાનીના નહીં. માટે જે અપ્રતિક્રમણ આદિ અમૃત કુંભ કયા છે તે અજ્ઞાનીના અપ્રતિક્રમણ આદિ ન જાણવા, એ ત્રીજી ભૂમિના શુદ્ધ આત્મામય જાણવા. તો એ વાત અહીંયા 189માં કરવામાં આવી છે. અને એનો વિસ્તાર આપણે કળશ અમૃતમાંથી પૂજ્ય ગુરુદેવ કરી રહ્યા છે તે લઈ રહ્યા છીએ. તો એનો જે ભાગ આજે આવશે એ આજે આપણે આગળ લઈએ છીએ. એમાં હવે આજે વાત આવે છે કે અધિક અધિક વિકલ્પ કરે છે તેમ તેમ અનુભવથી ભ્રષ્ટ થાય છે. તે કારણથી જન અર્થાત સમસ્ત સંસારી જીવ રાશિ નિર્વિકલ્પથી નિર્વિકલ્પ અનુભવ રૂપ કેમ પરિણમતો નથી? નિર્વિકલ્પથી નિર્વિકલ્પ અનુભવ રૂપ કેમ એ પરિણમતો નથી? કેવો છે જન? તો કે નિર્વિકલ્પ છે. કેવો છે નિર્વિકલ્પ અનુભવ? એ બધી વાત આજે આવશે. તો કે જેમાં પઠન પાઠન સ્મરણ ચિંતવન સ્તુતિ વંદના ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયારૂપ વિકલ્પો 20 સમાન કયા છે. જો અહીંયા પ્રતિક્રમણ નો અર્થ જે છે એ પંડિતજીએ રાજમલજી એક પઠન પાઠન એવો કરેલો છે. એટલે પઠન પાઠન સ્મરણ ચિંતન સ્તુતિ એ રીતે કર્યું છે. એટલે મૂળ તો એમાં કોઈ વિરોધ નથી આવતો, વિવક્ષા ભેદ છે. આ બધા ભાવ પણ શુભ ભાવ જ છે. ત્યાં પેલા પ્રતિક્રમણ એમ જે મૂળ કળશની અંદર જયારે કહ્યું છે તો એ પણ શુભ ભાવની જ વાત છે ને. અહીંયા હમણાં આ રીતે અર્થ કર્યો છે. તો આ બધા ભાવ શુભ ભાવ છે એને 20 સમાન કયા છે. અને તે નિર્વિકલ્પ અનુભવમાં ન ભણવું, ન ભણાવવું, ન વંદવું, ન નિંદવું એવો ભાવ અમૃતના નિધાન સમાન છે. જો કોઈ થાય કે નિંદવાની કેમ વાત આવી? ન નિંદવું એટલે એમાં એ અપેક્ષા છે, શુભ ભાવ છે ને, એટલે કોઈની પણ નિંદા ન કરીએ. અને નિંદા તો પાપની નિંદા કરીએ એ પણ પાછો શુભ ભાવ છે. તો અમૃતના નિધાન સમાન છે. ભાવાર્થ આમ છે કે નિર્વિકલ્પ અનુભવ સુખરૂપ છે, તેથી ઉપાદેય છે. અને નાના પ્રકારના વિકલ્પો આકુરતા રૂપ છે, તેથી હેય છે. તો આ આપણે આગળ પૂજ્ય ગુરુદેવ પાસેથી સમજીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ 6, એના પારા નંબર 42, પ્રવચન નંબર 210 પહેલેથી શરૂ કરી અને ગુરુદેવ આગળ શરૂ કરે છે.
कलश टीका 189 कलश चलते हैं 19 अध्याय में। अनेक क्रिया विकल्प विष के समान कहा है। क्या अध्याय ने क्या किया कि आत्मा में जो आत्मा तो वस्तु तरीके तो शुद्ध आनंद प्रभु है, सच्चिदानंद, शुद्ध अतीन्द्रिय अनंत आनंद, शुद्ध अनंत दर्शन, शुद्ध अनंत आनंद, ज्ञान स्वरूप, ऐसे ही अनंत ही शक्ति नो पिंड प्रभु वस्तु स्वभाव। उसमें जो अप्रतिक्रमण ने शास्त्र पढ़ना न पढ़ाना ने स्तुति भगवान ने स्तुति न वंदन ने ये सब राग है, विकल्प है। समझ में आया? तो राग है पाप, हिंसा, झूठों, चोरी, विषय, भोग, वासना, ये तो तीव्र झेर है ही। पर यहाँ जो राग की मनता में शास्त्र पढ़ना पढ़ाना वंदन स्तुति आदि स्मरण, परमात्मा का स्मरण के भक्ति पूजा आदि का भाव सब शुभ राग है, जहर है। हाँ, गजब बात है प्रभु। तो तेरी चीज में ये है नहीं, ये तो આગળ આવશે પછી કેવું થયું કે ભાવ શુદ્ધ જ્ઞાનની ચૈતન પરિણતિથી चेतना स्वरूप चेतन अनुभव में आवे ऐसी चीज है। और कैसी क्या किया कि विकल्प ने आदि जितना भक्ति भव पूजा भाव भगवत स्मरण नाम बधु सब राग है, ये आत्मा का आनंद स्वरूप से विपरीत विष कुंभ है, जहर का घड़ा है। જ્યારે भगवान आत्मा चेतना स्वरूप चेतन, यूं क्यों लिया? नीचे लिया, नीचे चेतना में सब जानने में आता है। चेतना राग जानने में विकार विष कुंभ कहा, वो भी जानने की भूमिका में जानने में आता है। जानने की चेतना भूमि में, चेतना की परिणति में, पर्याय में ये राग जानने में आता है कि आ राग भिन्न है। तो ये राग से आत्मा में लाभ होता है। भगवान की भक्ति ने पूजा ने दान ने दया दान थी आत्मा को धर्म ने लाभ होता है, ऐसा है नहीं। आखिरी बात से ये कहते हैं, देखो प्रणीतम जहर के समान कहा, तत्र अप्रतिक्रमण सुधा कुट। पहले अर्थ एमा लिया है समय सार में कि जब पठन पाठन प्रतिक्रमण वंदन स्तुति इसको जब जहर कहा तो पाप जो अप्रतिक्रमण है अनादि का पाप, उसको सुधा कैसे, ये अमृत कैसे हो, ये ठीक कैसे हो? यूं समझ में आया? जब विश्व भाव जिसको दुनिया सदाचार कहकर धर्म मानते हैं, भगवान भक्ति पूजा स्मरण दान
ऐसा जो विकल्प जो है, ये भी जहाँ जहर कहा तो किसी पाप परिणाम को क्या कहना, वो तो अमृत नहीं हो तो जहर ही है। ऐसा अर्थ समय सार में पहले किया है, यहाँ दूसरा अर्थ कहेगा। समय सार में अर्थ में ऐसा लिया है, यहाँ दूसरा कहेगा क्या कि प्रतिक्रमण आदि जब स्वभाव आत्मा की प्राप्ति में वो कारण नहीं, ત્યારે प्राप्ति का कारण कौन कि अप्रतिक्रमण सुधाकुट एवसात, उस निर्विकल्प अनुभव में अंतर में ज्ञान की भाव प्रणति द्वारा, भाव शुद्ध ज्ञान की दया पर्याय द्वारा चेतना स्वरूप चेतन का अनुभव वो अमृत है, ये धर्म है। आखिरी बात से भाई, अनंत अनंत काल थी अपन कभी एने चेतना 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 जिसमें जानना देखना ही स्वभाव पर वस्तु भी है, उसकी कबूलात कौन मानते हैं? ये तो चेतना, शरीर वाणी मन राग के परमात्मा आदि है, यो है कई भूमिका में जानने में आते हैं। ये चेतना की वर्तमान परिणति की भूमिका में जानने में आता है। चेतना त्रिकाली गुण है और चेतना स्वरूपी चेतन द्रव्य है। जिसमें जिस भूमिका में जानने में आता है आ है आ है आ है, ये आ है, ये इसको जानने में नहीं आता, पर आ ज्ञान की पर्याय में आ है ऐसा जानने में आता है। तो खरेखर तो त्या ज्ञान की पर्याय प्रसिद्ध पामती है। ये पर वस्तु प्रसिद्ध नहीं पामती। समझ में आया? चेतन भगवान, चेतन भगवान आत्मा, उसकी चेतना शक्ति गुण स्वभाव, उसकी चैतन परिणति भाव शुद्ध, ये भाव शुद्ध परिणति में आ है राग है व्यवहार है आ है, उसकी प्रसिद्धि चैतन की पर्याय में चैतन की पर्याय की प्रसिद्धि होती है। ये आ है इसकी प्रसिद्धि उसमें नहीं, है उसकी प्रसिद्धि चैतन परिणति में है। तो चैतन की परिणति जी पर्याय है, उसकी प्रसिद्धि है। ये आत्मख्याति कहा नहीं, ये आत्मख्याति है। टीका नु नाम आत्मख्याति है ना। ये चैतन्य वर्तमान ये दया दान व्रत भक्ति पूजा का राग से भिन्न चैतन की परिणति में ही आ है ऐसी प्रसिद्धि चैतन परिणति करती है। तो चैतन परिणति की ही प्रसिद्धि है। वो परिणति द्वारा चेतना स्वरूप चेतन को अनुभव करना वो अमृत है। આવી વાત છે, ઝીણી વાત બહુ બાપુ। અત્યારે તો દુનિયામાં બહારમાં ધર્મને નામે કંઈક કંઈક, 40મું પ્રભુ પણ એમાં હિત નહીં ને
जिसमें जन्म मरण मिटे नहीं, ये हित कहाँ से आया? ये शुभ भाव तो जन्म मरण क्या है? भव संसार रूप है। शुभ भावी जहर संसार रूप है। भगवान आत्मा ये जहर के काल में भी चेतन परिणति जहर को अपने में अपने कारण से जानती है, जानम पर्याय। चेतना गुण उसका धरने वाला चेतन, उसका अनुभव, ये अमृत है। समझ में आते हैं? यही बात है भगवान, तेरी चीज की क्या महिमा। सर्वोत्कृष्ट भगवान विराजमान अंदर है। सर्वज्ञ परमात्मा की भी पर्याय है ना, तो दृढ़ स्वभाव है। भगवान आत्मा वस्तु है न, वस्तु का स्वभाव है। आगे ने कहेगा स्वर्ष निर्भर। पछીના શ્લોકમાં 190 કહે છે, છેલ્લો પદ છે, એ તો સ્વરસથી પરિપૂર્ણ परपरा है। आत्म भगवान अंदर आत्मा जो है, ये अपना स्वभाव चेतना आनंद उससे भरपूर भरा है। उसका अनुभव वो यहाँ कहा, ये अप्रतिमा। अप्रतिमा का अर्थ क्या किया? न पढ़ना, भणावू नहीं, भणावू पर कोई तो विकल्प राग है। न पढ़ना, न पढ़ाना है ना। इसको पढ़ना पर नहीं अपना और न पढ़ाना, ये अप्रतिक्रमण है। ये विकल्प रहित ही निर्विकल्पता है, एम कहते हैं। આવી વાતો છે જેની એને હિતને માટે पक्ष क्या करना? ये तो पहलो पक्ष विकल्प थी आवे। हमारे है निर्मल शुद्ध परिणति थी आत्मा ने लाभ होता है, ऐसा विकल्प में पहले आए। पण वो कहीं सच वस्तु निर्णय नहीं, ये निर्णय सच नहीं। भूमिका में पहले आते हैं पक्ष में करने को कि मेरी चीज शुद्ध चैतन्य अमृत स्वरूप, चेतना स्वरूप में चेतन, उसका पक्ष ही मेरी चीज है। और विकल्प जो दयादान भक्ति पूजा आदि व्रत आदि का विकल्प है, मैं नहीं। ऐसा विकल्प सहित वीर्य में, शुभ भाव में ऐसा निर्णय करने की योग्यता प्रथम आती है। पण वो आया तो क्या अनुभव होते हैं, ऐसे नहीं। समझ में आया? अनुभव तो स्वरूप चेतन स्वरूप के अनुसरी ने होना हो अनुभव है। राग के अनुसरी न होना हो तो अहियां ઝેર का आकरू काम છે भाई। મોટા પંડિતો ભણી ભણીને મોટી વાતો કરે ને જાણે આવી વાતને ઉડાડી દે। આ સચ વાત है ને ઉડાડી દે, એ હિસાબ सच बात नहीं। ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। अबे ये तो अनंत बैर किया है, सुन तो सही।
भगवान भक्ति स्मरण जाप नाम अंदर अनंत वैर किया है, और प्रतिक्रमण परिहार धारणा निंदा करना ऐसा भाव शुभ भाव अनंत वैर हुआ है। यहाँ तो जिससे जन्म मरण मिटे न भव का फंद टले और आनंद भव का अभाव रूप आनंद का स्वाद आवे, ये बात कहते हैं। समझ में आया? तो यहाँ कहते हैं कि पहला पढ़ना पढ़ाना ये जहर कहा, न पढ़ना ये अमृत है। अर्थात पढ़ना वो तो एक विकल्प है, राग है। शास्त्र पढ़ना ये भी एक राग विकल्प है। हम तो आगम का अभ्यास करना मोक्ष मार्ग प्रकाश में बहुत आते हैं। पहला अध्याय में है अभ्यास करने की तो बात करे, पर वो विकल्प से है, उससे हम अपने में अंतरात्म ज्ञान होगा, ऐसा नहीं। बराबर। शास्त्र में बुद्धि जाना वो भी एक व्यभिचार है, क्योंकि अपना स्वभाव के साथ छोड़कर राग के साथ जुड़ान किया, मैं उसका नाम ही व्यभिचार है। यही बात है भगवान। न पढ़ाना, पढ़ना नहीं पढ़ाना नहीं, ये विकल्प रही दशा है, हम कहते हैं। एम के खूब लाखों मानस में वांचन करना, उपदेश देना वो धर्म है, ऐसा है नहीं। वो तो विकल्प है भगवान। न पढ़ना न पढ़ाना, न वंदना, वंदना न करना। वंदना करना है वो विकल्प राग है, वंदना न करना नाम स्वरूप तरफ की एकाग्रता करना, ये न वंदना। न निंदना, पाप भाव किया उसकी निंदा करना वो शुभ भाव है, वो न निंदना, वो भी नहीं करना। आई बात है भगवान, तुम तो भगवान है ना प्रभु, अतीन्द्रिय आनंद का नाथ सच्चिदानंद प्रभु, सत शाश्वत ज्ञान मूर्ति प्रभु, आनंद का सागर आत्मा, उसमें सा वंदना स्तुति ये तो सब रति का उत्थान है, विकल्प की उत्पत्ति है। तो न वंदना तो अनादर करना, न वंदना नोट सही नहीं, वंदन का भाव है विकल्प है, तो न वंदना वो निर्विकल्प। यूं न वंदना का अर्थ देवगुरु शास्त्र का वंदना नहीं, आदर नहीं करना, इसलिए अनादर करना है। यहाँ तो आदर करना वो विकल्प है, उसको छोड़ना। આવી વાત છે તો લક્ષ્મીચંદભાઈ દુનિયાથી જુદી છે। તું તો ચેતન પરિણતિ છે,
अनुभव में आने वाला है नहीं। चेतन का स्वरूप चेतना, वो तो चेतन की परिणति से अनुभव में आने वाला है नहीं। अपनी परिणति चैतन की, उससे वो अनुभव आने वाला है। ये राग से अनुभव आने वाली चीज नहीं। समझ में आया? कठिन पड़े पर पहले निर्णय तो उसको करो कि विकल्प सहित निर्णय में भी ऐसा आना चाहिए पहले। मैं तो चेतन परिणति से अपना चेतन स्वरूप, चेतना स्वरूप चेतन को अनुभव कर सकता हूँ। मेरा पत्ता चैतन परिणति से चेतना स्वरूप चेतन का पत्ता मिलता है। मेरा भगवान अंदर सच्चिदानंद प्रभु, ये मेरी चैतन परिणति विकल्प रहित, ये परिणति से उसका पत्ता और अनुभव हो जाता है। पत्ता मिलना नगर को का अनुभव हो। न वंदना, न वंदना करता, वंदन का विकल्प नहीं करना। यूं अपना स्व भगवान सिवाय अलावा कोई पण चीज पर वस्तु त्रणलोक ना नाथ तीर्थंकर सर्वज्ञ परमेश्वर हो और निग्रंथ दिगंबर संत आनंद का लहर में झूलने वाला, पर उसकी वंदना ने आदर वो भी तो विकल्प एक है। अनुभव विकल्प से नहीं होता। न वंदना इत्यादि है ना, इनना ऐसा भाव सुधा कुटे साथ ઓલામાં એમ લીધું છે કે અમૃત કેમ હોય? એ તો અપ્રતિક પાપ। જ્યારે पुण्य को झेर कहा शुभ भाव को, तो शुभ अमृत कैसे हो? यहाँ ऐसे कहते हैं कि न वंदना न स्तुति करना, ये अमृत का गड़ा है अमृत सुधा कुटेव साथ, ये अमृत के निधान के समान है। पहली जी कबूलात करवाए में पसीना उतर जाए। अहिया तो भगवान आत्मा अंदर सच्चिदानंद प्रभु, उसका अनुभव करने में क्या किया? ये अमृत के निधान समान प्रभु तो है। भगवान अंदर आत्मा जिसको कहिए, ये तो अमृत का निधान है। अतीन्द्रिय अनंत सुख का सागर है, अतीन्द्रिय अनंत ज्ञान का तो भंडार है। तो इंद्रिय से, मन से, न राग से जानने में नहीं आता। अरे ये सुधा कुट साथ अमृत के निदान के समान है। कूट नो अर्थ निदान कहो, सुधा नो अर्थ अमृत कहो। कूट कूट नहीं, पर्वत ऊपर मोटा कूट होता है, एमा कूट निदान अमृत का। पर्वत ऊपर कूट नहीं थता है बराबर। अपने शास्त्र में आवे 400 कूट नो 500 कूट नो पर्वत ऊपर शिखर शिखर हो ममड़ा। एम आत्मा तो अमृत का शिखर है, अमृत का कुंड है, अमृत का कूट है, अमृत का निदान है।
અહીં બે બીડી પીવે યા હરખી સિગારેટ ત્યાં મોજ લાગે, મજા લાગે. સવારમાં ઉકાળો પીવે, ઉઠે એટલે ઉકાળો એટલે ચા, પાસે દોઢ પાસે કચ્છે પીવે ત્યાં મગજ ઠીક. એને એમ કહેવું કે પ્રભુ તેરા आत्मा अतीन्द्रिय आनंद निदान है ने, तेरा भाव जो पीने का है तो जहर है ने. समझ में आया? अमृत कूट. निश्चित पर्वत ने नीलू पर्वत नहीं, पर्वत ऊपर कूट હોય છે, ઊંચા ઊંચા, શાશ્વત શાશ્વત એને कूट કહે છે. અહીંયા भगवान अमृत का कूट है. ये पत्थर का कूट है, निश्चित नीलबंध पर्वत आदि है कूट. परमात्मा भगवान अंदर है भाई. एने क्षेत्र की जरूर नहीं, बहुत क्षेत्र लंबा हो तो ऐसा होते, ऐसा कुछ नहीं. वो शरीर प्रमाणे भगवान अंदर में अनंत आनंद का कूट भंडार पड़ा है. भगवान परमात्मा जब होता है आत्मा, तब उसको अनंत आनंद आता है. ये अनंत आनंद एक एक क्षण में भिन्न भिन्न आता है. तो भिन्न भिन्न अनंत आनंद का सागर तो अंदर है. वो तो एक समय की पर्याय आनंद की परमात्मा होता है. जनेन्द्र देव नमोरियंतानंद कहते हैं, कोई पक्ष का शब्द नहीं है. भगवान आनंद से भरा पड़ा, उसके विरोध ब्रह्मणा श्रद्धा ने राग भी से हरि कहते हैं. हरि जिसको हंता नाम है, हरि ने जिसके हंता है, आई नमोरि हंतान, उसको हम नमस्कार करते हैं. ये आता है, ये कोई पक्ष का शब्द नहीं. नमोरि हंतान, जिन्हें भगवान आनंद का नाद का अनुभव करके ब्रह्मणा मिथ्यात्व ने रागवेश रूपी वैरी को हंता नाम नाश किया और पूर्ण आनंद के पर्याय का उत्पाद किया. और ध्रुव स्वरूप तो अनादि का है ही. उत्पाद तो ये ध्रुव हो गया. उसको नमो अरिहंतानम, ऐसा अरिहंत, हरि नाम विकार दुश्मन को हणकर जिसने अपना अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय दशा प्रकट किया, जिसको क्षुधा तृषा नहीं, जिसको आनंद 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 एकला है, ऐसा परमात्मा को अरिहंत कहते हैं. ये परमात्मा को ये अनंत आनंद आता है, ये भी एक समय की पर्याय है. तो निधान है. ऐसा अनंत अनंत आनंद का तो निधान भगवान है. आई अमृत किया शब्द. आओ व्याख्यान उपदेश है. मान पकड़ाय कठण पड़े भाई, मार्ग तो आ है बापा. दुनिया कई ने कई चढ़ावी दीधा છે. ત્યાંથી પાછો વળ પ્રભુ, અને જ્યાં સ્વરૂપ નિધાન છે ત્યાં આવીને છે. ये अमृत के निधान के समान है. अमृत अर्थ कहो सुधा को, कूट अर्थ कहो निधान को. एव साथ अमृत ना निधान एव निश्चय साथ होय छे. हम जानू कहा है, इतर 4 शब्द में ऐसा पड़ा है. अमृत, सुधा, कूट, निधान
एव साथ ये है, ये तो अमृत का निदान है। भगवान अंदर में तो अनंत आनंद का नाथ है, पर उसकी दशा में खबर नहीं, भटकते हैं 4 गति 84 लाख में योनि में। जिसको आत्मा का सम्यक दर्शन प्रकट करना हो तो एक जहर का विकल्प से भिन्न कर अमृत का निधान को अनुभव करना। आओ मार्ग, आओ जैन धर्म से आत्म धर्म या तो के दया पालो, सकाई ने दया पालो, ना व्रत पालो, नप्पा करो, रात्रि नो खाओ, 6 पर व्यायाम करो, ढीकणું કરો, ફીકણું કરો। बापू ये तो बड़ी विकल्पनी वातों है रागनी। आ तो राग थी विकल्प थी पार प्रभु अंदर छे, एने निधान सुधा निधान एव साथ। अमृत नो निधान जो छे साथे જ હોય છે, સિદ્ધ સુધા કૂટ એવ એ સાથ હોય છે, એના સમાન છે। સમજાય છે ને કાંઈ? માર્ગ તો આવો છે પ્રભુ। हाँ तो एक इंद्रिय ने दया पालवी, 2 इंद्रिय ने दया पालवी, 3 इंद्रिय ने दया पाले। हाँ कहते कि दया पाली सकते ही नहीं पहले 3 काल में, पर की क्रिया कौन कर सकते हैं? और तेरा भाव आया दया का, वो भाव भी राग है। सुधा कुट एव साथ अमृतना निधान एव एज एना समान। एव साथ ये छे अमृतनो निधान, ये छे आत्मा तो। भावार्थ ऐसा है कि निर्विकल्प अनुभव सुख रूप है। अमृत कीधु ने, राग भाव जो है विष प्रणित, ये तो जहर है, आ भगवान आत्मा का अनुभव है तो आनंद सुख है। निर्विक्रम सुख रूप है, इसलिए उपाधि है। ये आत्मा का आनंद स्वरूप भगवान त्रिकाली नित्यानंद प्रभु ये आदरणीय ने सत्कार स्वीकार करने लायक है। नाना प्रकार के विकल्प आकुलता रूप है, नाना नाम अनेक प्रकार ना जो विकल्प उठते हैं राग, ये सब दुख रूप है। इसमें ये है, 2 बात ले लीजिए, निर्विकल्प अनुभव सुख रूप है, इसमें उपाधि है। अनेक प्रकार ना विकल्प दुख रूप है, आकृप है, इसलिए ये है। टूंका में कहिए। 190 कर्मान् कलित कथं भवन्ति शुद्धभावो अलस कषाय भर्गौरवात् अलसता प्रमादो यत् अत्स्वरस निर्भरे नियमित स्वभावे भवन मुनि परम शुद्धतां वर्जति मुच्यते वा अचिरात्। अलस प्रमाद कलित शुद्धभाव कथन भवती, अनुभव में शिथिल। ये सब प्रतिक्रमण ने, परिहार ने, वंदन ने, स्तुति ने,
ये तो सब प्रभु, ये तो आलस भाव, प्रमाद भाव है। हा। भगवान आत्मा का जो आनंद न आते हैं, ये सब प्रमाद भाव है। भगवान तो अंतर अतीन्द्रिय आनंद की मूर्ति प्रभु है। प्रमाद છે अनुभव में शिथिल प्रमाद की व्याख्या आलस आलस कहो कि प्रमाद कहो, प्रमाद कहो कि विकल्पो बधा कहो। रागनी वृत्ति उठे छे ये आलस है, ये प्रमाद है। ऐसा जी और कैसा है, नाना प्रकार के विकल्प से संयुक्त है, अनेक प्रकार ना राग नहीं आकुलता नहीं सहित है। ऐसा जी शुद्ध भाव कथम भवती, ऐसा जी शुद्ध कैसे होता है? अने शुद्ध भाव बिना धर्म होता नहीं। ये दया दान व्रत भक्ति तप आदि का भाव ये शुभ अशुद्ध है। राग नाखी जाए छे ने। है अनेक प्रकार का संयुक्त ऐसा जीव स्वरूपयोग कैसा होता है? देखो हिंसा झूठों चोरी विषय भोग काम क्रोध भाव पाप, दया दान व्रत भक्ति पूजा भगवत स्मरण पुण्य, बेभाव आलस में प्रमाद है, ये अशुद्ध भाव है। उसमें शुद्ध भाव कहां से आया? उससे शुद्ध भाव कहां से होगा एम कहते हैं। है शुद्ध भाव कथम भवंती, शुद्ध उपयोग कैसा होता? अभी तो नहीं होता। क्या क्या ये विकल्प जी उठते हैं, राग ये तो आलस भाव प्रमाद भाव है न, तो आलस में प्रमाद में विकल्प से शुद्ध भाव कैसे होता है? शुद्ध भाव तो ये विकल्प से रहित भगवान चेतना स्वरूप का चेतन का अनुभव करना, ये शुद्ध भाव है। ये शुद्ध भाव वो धर्म है। है कि नहीं? अंदर अनुभव में शिक्षण शुद्ध कैसे होता है? अभी तो नहीं होता। और सुताम प्रभाव प्रमाद कसाय भय गौरवाद, जिस कारण से अनुभव में शिथिलता, अंतर आनंद का अनुभव में शिथिलता। भगवान अतीन्द्रिय आनंद नो नाद प्रभु, उसका अनुभव, उससे अनुभव होना, उसमें जो शिथिल है, प्रमादी है, आलसी है, ये कहा ना। शिथिलता नाना प्रकार का विकल्प किस कारण से होता है? कषाय भव, ये तो कषाय रागादि अशुद्ध प्रवृत्ति का उदय के तीव्रपन से होता है। ये विकल्प होता है पढ़ना पढ़ाना का प्रभु। समाधि शतक में तो ऐसा ही कहा कि हम दूसरा को उपदेश देते हैं, ऐसा विकल्प उन्माद है। क्योंकि भगवान आत्मा तो ये विकल्प राग से तो भिन्न अंदर है। तो हम दूसरा को समझाने में जो विकल्प उठते हैं, ये तो स्वभाव है, तो भी उसको तो क्या उन्माद का। अने तेरा विकल्प से क्या ये समझ जाते हैं, समझ सकते हैं?
इसकी योग्यता है वो समझते हैं तो ऐसे समझाऊं, ऐसा विकल्प उठते हैं तो एक उन्माद है, समाधि नहीं, समाधि तंत्र का अधिकरण है। हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? शिथिलपना अनेक विकल्प, रागादि अशुद्ध प्रणति उदय के तीव्रपना भार, हा हा हा, આ તો તીવ્ર લીધો જોયો કેમ કે છઠ્ઠે ગુણ સ્થાને भी જે प्रमाद भाव पंचमावर्त का है ने ये संजल का तीव्र भाव है। मंद हो जाए तो सप्तम हो जाता है। क्या किया? मुनि सच्चा होता है, आत्मा आनंद का ज्ञानी अनुभवी, उसको भी कोई पंचमहावर्त का विकल्प उठते हैं तो त्या संजल का तीव्र भाव कहने में आया है, कसाय का तीव्र भाव है। ये यहाँ लिया है। और पीछे सप्त में जाते आनंद में तो पीछे मंद राग अबुद्धि पर रहते हैं। वो कारण से शुभ भाव को भी तीव्र कसाई कहने में आया है। समझ में आया है न? अशुद्ध परिणति के उदय के यहाँ कहीं अशुभ भाव ने एक बात नहीं है, खरेखर तो अशुभ भाव की बातें चलती है यहाँ तो है। એને यहाँ तीव्रपणું કહ્યું છે। मंदपणु तो अप्रमद दशा में अबुद्धि पर राग रह जाए उसको मंद कसाई कहते हैं। छठी भूमिका में मुनि ने पंच महाव्रत वंदन स्तुति का भाव भी कसाई तीव्र है। तो उसमें सदुपयोग कहां से आता है हम कहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार जीव शिथिल है, विकल्प करता है, यह शुद्ध, ये जीव शुद्ध नहीं। कारण के शिथिलपना विकल्पना का अशुद्धपना का मूल है। लो शिथिलपणु એટલે વિકલ્પ રાગપણું એ અશુદ્ધપણાનું મૂળ છે, માટે શુદ્ધતા હોતી નથી। શુદ્ધતા तो स्वभाव को आश्रय लेकर शुद्धता होती है। એ રીતે કળશ 189 નો વિસ્તાર પૂરો થયો અને 190 નો કેટલોક ભાગ આપણે કર્યો છે કે 190 માં કળશ પૂજ્ય ગુરુદેવે ઘણો વિસ્તાર કર્યો છે, એનો શેષ ભાગ આપણે આવતા સ્વાધ્યાયમાં લઈશું।